इधर हाँ सर, क्लास आ रहा है बस में। कितना टाइम लगेगा आने में? और सर अभी तो बस बैठे हैं, अभी बस निकला है। बस निकला है? कहाँ से निकला? सर अभी खिदिरपुर में। ओहो, वाह। तो अभी वो आधा घंटा है। नहीं, थोड़ी 20 मिनट। अगर पीजी के पास से आएगा तो पीजी से पैदल भी तो आ सकते हैं। अच्छा हम्म, अच्छा ठीक है। ठीक है, रुद्र चलो आ जाओ। কি এটা? ব্যাচ ট্রান্সফার কেন? এই টাইমটার আমার সুবিধা হচ্ছে। ব্যাচ ট্রান্সফার ফি লাগবে তো? হ্যাঁ দিয়ে দিয়েছি। তো রিসিপ্ট কোথায়? রিসিপ্টে আছে নাকি? আছে? হ্যাঁ ये लो। नहीं, ये तो लगेगा। Good afternoon, sir. Sorry, good morning, sir. Good morning, everyone. Today I would like to say about routing. So, what is router? Router is a layer 3 device which is used for network purpose, and there are three types of routing: static, dynamic, and default. Static routing, which is done by manually and sending the data packets from source to destination, is called as static routing. And dynamic routing, it is done by routing protocols like OSPF, REAP, and what is interior routing protocol? uh, which is used to uh, uh, sending the routing table within the same autonomous system. And exterior, which is it is a process which is sent to uh, their routing table from one to from one belong to other administrative domain. And mm, mm, what is matrix? So matrix is a mathematical calculation which is used to forward the data from source to destination. So there are Okay. six. ठीक है। Yes. So old topic, Yes. so we can ask question. चलो What do you mean about external? अभी बोल दिए exterior के बारे में. What do you mean by exterior protocol? Exterior protocol. exterior routing protocol. तो BGP it establishes the communication. एग्जाम्पल नहीं पूछ रहे हो? What do you mean by What do you mean by So it sending the routing table from one belong to the other administrative domain. It's called as exterior routing protocol. OSPF का AD वैल्यू बोलना है। SPF का AD value 110. हाँ Okay, port number 89. डिफॉल्ट राउटिंग Default routing. क्वेश्चन तो पूरा करो। डिफॉल्ट राउटिंग क्या पूछना चाहता है वो? What? अच्छा, What is default routing? तो Definition. बोलो। So- definition of For the default what routing. is default routing? Default routing is a fundamental routing that can reach, but the routing uh, they know about their destination. That's it. Any other questions? ऑनलाइन से कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? सर अब तो तीन हो गया, अभी भी पूछ रहा है कि. कोई नहीं पूछना चाहता? ठीक है, Okay, sir. आ जाओ। Thank you, sir. और कौन देगा? ऋतिक ना, ऋतिक तो आ रहा है। ऋतिक तुम यहाँ से तो? अच्छा वो आएगा तो मेरे को याद दिलाना, तो उसका प्रेजेंटेशन में रहेगा ऋतिक का। ওইখানে চান করলেন 30 এটা আমি চান করে বেরিয়েছি দেখ কি ঘরে ঢুকলাম ঘরে 2 ঘন্টা মানে 7:30 থেকে 2 ঘন্টা चलो तो स्टार्ट करिए टॉपिक आज का। তারপরে लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। टुडेज टॉपिक हम लोगों का जो होगा वो नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सो
आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन? आप लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो क्या? यस सर। So basically we will learn VPN today. Okay, आज हम लोग VPN सीखेंगे. VPN आप लोग जानते हो? I think everyone knows what is VPN. What is the purpose of using a VPN and how VPN works? ये तो सबको पता है, आप लोग सर्वर CCNA करके ही आए हो, है ना? VPN, what is VPN? So how we configure VPN in AWS? AWS में हम लोग VPN कैसे बनाएंगे वो हम लोग आज सीखने वाले हैं, ठीक है? It's also a part of VPC. VPC के अंदर ही VPC चैप्टर जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना, उसके अंदर ही हम लोग VPN सीखेंगे. ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ मेन टॉपिक विच इज VPC. उसके अंदर ये VPN है, ठीक है? तो VPN स्टार्ट करने से पहले, बिफोर स्टार्टिंग VPN, वी शुड लाइक आई थिंक वी शुड यूज अ रिकॉल. सो बिकॉज टुडे वी हैव अ लास्ट टॉपिक ऑफ VPC. सो एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि अभी तक VPC में हम लोग क्या क्या सीखे हैं. कौन बताएगा क्या क्या सीखे VPC में? मतलब उसमें क्या क्या बनाते थे? सबनेट्स, IGW. हाँ सिंपल. हाँ, बैठ के बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं. सर VPC इज 1 by 1 बताना है क्या? हाँ हाँ, नहीं, उसमें क्या क्या बनाए हैं, कॉन्फ़िगर क्या किए? सर उसमें बनाते हैं सर ग्रुप, इंटरनेट, नहीं Sorry. वापस बोलो. सर ग्रुप क्रिएट करते हैं, उसके बाद सर IP असाइन करते हैं. सेकेंड है सर हम लोग इंटरनेट गेटवे क्रिएट करते हैं, और प्लस सर हम लोग नहीं समझ में आया. मैं मेरा सवाल ये था कि VPC में हम लोग क्या क्या सीखे हैं. व्हाट आर द टॉपिक्स वी हैव लर्न इन VPC? दैट इज VPC peering सर, VPC peering सीखा. हाँ, VPC नेट, तुम्ही के सर 350 रोहित कुमार साव, तुम आज पहला क्लास है? नहीं सर, ऑनलाइन किए हो? ठीक है, बैठो. VPC पेयरिंग एक टॉपिक आप बताए सही से. VPC पेयरिंग सीखे हैं सर. NACL. VPC EC2 इंस्टेंस सर. अच्छा, EC2 इंस्टेंस. EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना सीखे हैं. हाउ टू एंड VPC सर नेट, और नेट्स. सर VPC नेट. VPC नेट नाम नहीं है उसका. ओके, नेट, नेट भी नाम नहीं है, Net मतलब gateway. नेट गेटवे. यस, नेट गेटवे ये भी सीखे हैं, है ना? सर सर NACL नेटवर्क कंट्रोल एक्सेस. NACL. NACL ऋतिक साव के नहीं. তোমার নাম কি? শুভজিৎ. তোমার তোমার প্রেজেন্টেশন তোমরা দাওনি একবার না? শুভজিৎ চলে এসো. नेट गेटवे इंटरनेट गेटवे. और उसके बाद NACL सीखे हैं. NACL IGW भी देख लिए. IGW कॉन्फ़िगरेशन. नेट सीखिए सर. और IGW कॉन्फ़िगरेशन, इंटरनेट गेटवे. और क्या सीखे हैं? IGW. IGW का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट गेटवे. इंटरनेट गेटवे. इंटरनेट गेटवे सर. अच्छा, और क्या सीखे हैं? सिक्योरिटी ग्रुप. हाँ, तो मैं इसके साथ लिख देता हूँ NACL एंड सिक्योरिटी ग्रुप. सर रूट टेबल क्रिएट करना सिक्योरिटी ग्रुप. अच्छा, रूट टेबल क्रिएट करना सीखे हैं. मैं जल्दी लिखता हूँ, जल्दी हो जाएगा. रूट पब्लिक टेबल. सबनेट, प्राइवेट सबनेट.
वही तो सबनेट्स सबनेट कॉन्फ़िगरेशन देखे इसमें। सबनेट्स हम लोग सीखे हैं, सबनेट्स क्रिएशन, प्राइवेट पब्लिक जो भी है। और मुशिक दे दो साइड ENI रोहित और शुभजीत तुम्हारा and ENIS ड्यू है ENI सीखे हैं। ENI का फुल फॉर्म क्या है, ये बताएगा? हाँ सर इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस इलास्टिक नेटवर्क इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस। और ENIS ENIS कौन? ENIS कौन? মানে ENI আর ENIS তো দুটোই হয়েছে, এটা তো ওরা ওই মাইক্রো না 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 वही IAS लासे इंस्टेंस ENIS माने की बोलते हैं? না বলে अच्छा, और क्या? इलास्टिक आईपी सीखे हैं। इलास्टिक आईपी हम लोग सीखे हैं। और एयर गेटवे तो लिखा ऊपर में ना कहीं पे, हाँ। और कुछ मिस हुआ है क्या? सब पेयरिंग में कैसे CIDR यूज किए हैं सबनेट के साथ, सबनेट्स एंड CIDR। मैं इधर ही लिख देता हूँ। पेयरिंग सबसे पहले तुम लोग बोले हो, इसलिए मैं पेयरिंग पहले लिखा हूँ। और क्या? सर 10 हो गया ना? 10 हो गया, 10 ही सीखे हैं। कुछ मिस नहीं हो रहा है? पक्का? सर पब्लिक और प्राइवेट में तो आउटसाइड कम्युनिकेशन भी देखे थे हम। सर ये ग्रुप टेबल सिक्योरिटी ग्रुप सर। हो गया सिक्योरिटी ग्रुप तो इधर लिखा ना। ओके सर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0। BPC सीखे हैं। मेन टॉपिक तो बताया ही नहीं। हाँ? BPC স্যার ভার্চুয়াল প্রাইভেট গেটওয়ে বলে একটা ছিল। वर्चुअल प्राइवेट গেটওয়ে BPG ना। হ্যাঁ ওটা শেখায়নি। না। सीखो যেটা হয়ে গেছে सीखा। और कुछ? साइड ऊपर को नीचे को सर कस्टम बीपीसी बनाना सीखे चलिए। हाँ सर। हाँ बीपीसी क्यों कस्टम? यस सर, कस्टम बीपीसी। कस्टम BPC, चलो मैं लिख देता हूँ कस्टम BPC इधर में। और कुछ? और कुछ नहीं है ना, मिस हुआ? सर पब्लिक प्राइवेट में जो कम्युनिकेशन था मतलब आउटसाइड कम्युनिकेशन वो भी बोल सकते हैं, उसको क्या बोले? जो हम लोग देखे नहीं थे, एक वेब सर्वर बनाया था और एक वेब सर्वर था और एक डाटा सर्वर था, डेटाबेस सर्वर था। सो आउटसाइड कम्युनिकेशन जो आउटसाइड से एक्सेस मिला था, जैसे आउटसाइड से वो एक्सेस लिया था आपके पब्लिक सर्वर को और कैसे फिर उसके बाद प्राइवेट सर्वर उसको कुछ वो भी तो प्रैक्टिकल देखे। हाँ तो वो सबनेट में हो गया ना, प्राइवेट सबनेट पब्लिक सबनेट। हाँ दैट्स इट। ठीक है, तो एक और चीज बाकी रह गया है बोलना, वो हम लोग सीखेंगे, दैट इज एंड पॉइंट। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं, बिकॉज अभी थोड़ा सा इरेलेवेंट नहीं है टॉपिक यहाँ पे, तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। इसको थोड़ा नोट करके रखो, ये हमारा एक पॉइंट इधर में बाकी रह गया, एंड पॉइंट। एंड पॉइंट इज ए पार्ट ऑफ VPC के अंदर ही आता है ये। और दूसरा VPN, जिसके बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं। ओके, सो VPN के बारे में बात करने वाले हैं आज। तो VPN का थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि VPN का कहाँ पे यूज है या VPN कब यूज करते हैं। सो VPN नॉर्मली VPN का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, so it's a full form of VPN. हाँ,
सो VPN एक ऐसा कनेक्शन है जिस कनेक्शन से मुझे एक प्राइवेट या फिर एक सिक्योर रिसोर्स को पब्लिक इंटरफेस के थ्रू से मैं एक्सेस कर सकता हूँ यूजिंग अ टनल। मतलब समझ लो कि आपका यहाँ पे मुंबई में एक ऑफिस है, ओके, और यहाँ पे कोलकाता में हमारा एक ऑफिस है। सो ये मुंबई का जो सर्वर्स है, ये सर्वर को मैं नहीं चाहता कि पब्लिकली एक्सेसिबल हो। मैं चाहता हूँ क्या, ये सर्वर्स जो है पब्लिकली एक्सेसिबल ना हो, लेकिन कोलकाता का यूजर जो है उसको एक्सेस कर पाए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कोलकाता और मुंबई के बीच में एक VPN क्रिएट कर सकता हूँ। क्लियर? ये VPN जो क्रिएट हुआ है ये पब्लिक इंटरफेस, पब्लिक इंटरनेट के थ्रू से हो रहा है। ये कनेक्टिविटी आपका इंटरनेट के थ्रू से ही हुआ है, पब्लिक नेटवर्क की है। लेकिन ये सर्वर को बाहर का कोई भी यूजर एक्सेस नहीं कर पाएगा, सिर्फ कोलकाता का ही यूजर एक्सेस कर पाएगा, बिकॉज आप क्या क्रिएट किए, एक टनल क्रिएट किया। जैसे मेट्रो नीचे में है ना, वहाँ यहाँ पे अंडरग्राउंड मेट्रो, वो क्या है, टनल है। उस टनल से सिर्फ मेट्रो ही आ सकता है, ठीक है ना। जो भी जाएगा उस टनल के थ्रू से ही जाएगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है जाने का। तो सेम यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक लॉजिकली टनल क्रिएट कर रहा है। कैसे? यूजिंग द VPN। सो दैट इज कॉल्ड टनल। इसको क्या बोलते हैं? टनल बोलते हैं। इसका भी तो है। तो जो भी डेटा होगा वो डेटा टनल के थ्रू से जाएगा, एंड ऑल डेटा विल बी इनक्रिप्टेड। दैट डेटा विल बी क्या होगा? इनक्रिप्टेड होगा। इनक्रिप्शन मतलब क्या होता है? ये इनक्रिप्टेड बोल रहे हैं, इनक्रिप्टेड मतलब क्या होता है? एनी आइडिया? सर इनक्रिप्टेड मतलब जिससे आसानी से, वो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है सर, और जिससे आसानी से मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, वो सिक्योर है सर। इनक्रिप्टेड मीन सिक्योर, मतलब जो भी डेटा रीडेबल फॉर्मेट में होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब प्लेन टेक्स्ट जो रहेगा जिसको हम रीड कर सकते हैं वो एक अनरीडेबल फॉर्मेट में ट्रांसफर हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड सिफर टेक्स्ट। सो दैट इज कॉल्ड इंक्रिप्शन, है ना। जैसे यहाँ पे हम लोग जो की ओपन कर रहे थे, ये की ओपन कर रहे थे ना अभी, ये की जो ओपन हो रहा था, तो ये क्या था? इनक्रिप्टेड की है। आप अगर इस की को अगर ओपन करोगे तो ये आपको क्या दिखाएगा? पूरा इनक्रिप्टेड है ये की। मेरे पास वो रिमोट वाला की है क्या है? तो एक की जब मैं कॉपी पेस्ट कर रहा था, देखे तो पूरा इंक्रिप्टेड था। वहाँ पे कुछ था लिखा, बट उसको आप रीड नहीं कर पा रहे थे क्या लिखा हुआ। तो इस तरह से डेटा भी क्या हो जाएगा? आपका इंक्रिप्टेड होकर जाएगा, कि बाहर से कोई अगर इसको एक्सेस भी कर लेगा तो उसको वो रीड नहीं कर सकता कि इसके अंदर क्या है। सो दैट इज कॉल्ड इंक्रिप्शन। उसको डिक्रिप्ट वही कर पाएगा जो एक्चुअल डेस्टिनेशन है या फिर एक्चुअल जो रिसीवर है, जिसको डेटा भेजा जा रहा है, वही सिर्फ उस डेटा को डिक्रिप्ट कर सकता है। तो यहाँ पे इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का टेक्निक यूज होता है, इसलिए ये ज़्यादा सिक्योर है। हम लोग वेबसाइट भी जब क्रिएट करते हैं या वेबसाइट भी जब यूज करते हैं, वी आर यूजिंग द प्रोटोकॉल HTTPS। ये S यहाँ पे यूज करते हैं बिकॉज ये भी मुझे क्या प्रोवाइड कर रहा है? सिक्योरिटी। कैसे? इंक्रिप्शन। क्लियर? सो दैट्स व्हाई टुडे वी आर यूजिंग द services in websites which is secure services, SSL services, that provide us this encryption। SSL TLS यूज करते हैं जो हम लोग को इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता है। और ये कहाँ से मिलता है? यहाँ पे S जो लग जाता है, HTTP के साथ क्या लग जाता है? HTTPS हो जाता है, जिसका पोर्ट नंबर 443 होता है। अभी जो वेबसाइट जो भी ओपन करते हो, गूगल, फेसबुक, जो भी ओपन कर रहे हो आप लोग, वो सारा क्या है? सिक्योर है, बिकॉज वहाँ पे HTTPS यूज होता है। और इसके वजह से मुझे क्या मिलता है? इंक्रिप्शन मिलता है ना। ऋतिक सब आया? तुम हो? तुम्हारा बैच नंबर क्या है? हम लोग 350 का तो नहीं था, 356 का था।
356 का शुभजीत ना नहीं दिया एक बार भी ना प्रेजेंटेशन। अच्छा तो VPN क्लियर है सबके लिए? VPN का सिनारियो हम लोग देखेंगे अभी AWS में किस तरह से हम लोग इसको यूज करेंगे। हाँ? VPN से हम लोग कैसे अपना रिसोर्स को एक्सेस करेंगे। सर पोर्ट नाम्बारটা কত বললেন? कार HTTPS স্যার 443 443 শুভজিৎ চলে এসো। হ্যাঁ প্রেজেন্টেশন হয়ে গেছে, তোমারই ওয়েট করছি। লাস্টে দিলে হবে না না প্রেজেন্টেশন তো প্রথমে নেওয়া হয়, তোমরা লেট করে এসছো বলেই তো নিতে পারছি না। किसका वो भेजा वो 10 रुपीज फाइन? वो सर जीत है ना, जीत अभी उठ सोया है, वो जब भी वो उठे वो भेजे, वो भेज देगा। जीत हालदार रोबोट है, रोबोट को सबसे ज्यादा पेमेंट करता है। শুভজিৎ চলে এসো। सबसे ज्यादा ही पेमेंट স্যার অন্য টপিক দিলে হবে? অন্য টপিক হ্যাঁ দিতে পারো, তাহলে ক্রস কোশ্চেন করা হবে। शुभजीत का नाम कहाँ है? शुभजीत दास। हाँ, चलो लास्ट प्रेजेंटेशन जनवरी में दिया था, फरवरी में दिया ही नहीं, एक बार वो भी नहीं दिया। কোথায় না দাও তাই ফেব্রুয়ারি তাড়াতাড়ি আসো, ক্লাস বসে আছে তোমার জন্য। যা যা যতটুকু পারবি দেবে। आगे से क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास हम लोग को सैटरडे को है। सैटरडे यू हैव प्रैक्टिकल क्लास, ठीक है? तो प्रैक्टिकल ऑफलाइन में सबको आना है, ठीक है ना, प्रैक्टिकल करने के लिए, क्योंकि कहीं पे आपका प्रॉब्लम होगा तो मैं रहूँगा, तो थोड़ा सा ट्रबल शूट भी कर पाऊँगा। ऑनलाइन में रहोगे तो ट्रबल शूट करने में दिक्कत होगा। हाँ सर अकाउंट का क्या करें सर, कहीं कुछ हो नहीं रहा है। अकाउंट का क्या किससे करोगे? हमारे हाँ? क्या हुआ अकाउंट का? अकाउंट कैसे ओपन करें सर? अकाउंट के लिए ना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज करना पड़ेगा। नॉन रुपए सर मतलब रुपए कार्ड। उससे भी कर रहे लेकिन सर उससे पेमेंट नहीं हो पा रहा। तो उसमें आपका ट्रांजैक्शन ऑन करके रखे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऑन करो, एनेबल करो, तभी होगा। कार्ड का सेटिंग में जाकर के ट्रांजैक्शन को, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को ऑन करना पड़ेगा। अच्छा आ जाओ चलो। मैंने आज सुबह से क्लिक कर सकते हैं। अच्छा असाइनमेंट में हम लोग को सैटरडे को ठीक होगा। हाँ सैटरडे को चलो स्टार्ट करो। শুভজিৎ দাস। তোমাদের পিটিএম এর ব্যাপারে কিছু বলা হয়েছে? পিটিএম के बारे में बोला गया ना? नहीं हाँ सर और वहाँ कॉपी कार्ड में छोड़कर है सर। जब तो मैं तो सैटरडे को कॉपी कैसे साइन कराएंगे? चलो तुम्हारा क्या लिखना है बोलना, लिख दें। Good morning, sir. Good morning, everyone. So today my topic is routing. What is dynamic routing? What is routing? The process of creating the routes by the routing protocols to the process of creating the routes by the routing protocols from source to destination is called as dynamic routing. And
static routing is the process of creating the routes manually is called as static routing, and what is routing protocols? The routing protocols are the mathematical calculations developed by the scientists, and and what is AD? AD is administrative distance, and the range is 0 to 255, and the lower the value, the more secure the route. And routing protocols are two types: interior routing protocol and exterior routing protocol. না ঠিক আছে। কোশ্চেন Number range of AMS. নাম্বার রেঞ্জ ऑफ Autonomous system. AS होगा, ऑटोनोमस सिस्टम AS। तो ऐसे एएस पूछी ना। Number range of नेक्स्ट क्वेश्चन। What is ASN? ASN. Autonomous system number. मैंने full form नहीं पूछा। क्या है autonomous? What is it? अरे जीतेश। তো একটা আছে। সব লেট হচ্ছে, চলে এসো চলে এসো। আর একটু আগে আসতে পারতে, মিস করে ফেললে। নেক্সট কোশ্চেন। Pardon me. Type of exterior routing protocol. এই বাবা যে লোক জিজ্ঞেস করে বলো হে, কিছুই তো বল, চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছো, বলো একটা উত্তর দাও। এ কি মনে পড়ছে না। সব এমন মনে টপিক ছিল। চুজ করেছো কেন যেটা মনেই নেই? এটাই একটু পড়েছিলাম। अच्छा स्टैटिक राउटिंग का एडी वैल्यू बोलो काफी One. আর করছে। ম্যাট্রিক্স জিজ্ঞেস করে मैट्रिक्स से पूछो ঠিক আছে চলে এসো। चलो तो मैं एक सिनारियो यहाँ पे डाउनलोड किया हूँ, ये मेरा सिनारियो रहेगा, समझ लो। नाउ दैट इज माय AWS, ओके। तो ये AWS का पूरा आपका VPC है,
और इस VPC के अंदर ये मेरा प्राइवेट सबनेट है। मेरा प्राइवेट सबनेट में काफ़ी सिक्योर सिस्टम्स है। मैं चाहता हूँ क्या ये सिस्टम्स वही एक्सेस कर पाए जिसका पास एक्सेस करने का ऑथोरिटी है, जिसको यूज़र नेम पासवर्ड पता हो, जिसके पास VPN का एक्सेस हो। अब दुनिया में कोई भी एक्सेस कर सकता है, कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। मैं रिमोट एक्सेस VPN का बात कर रहा हूँ, मैं साइट टू साइट VPN का बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। साइट टू साइट VPN हम लोगों का नेक्स्ट अलग टॉपिक है वो, तो हम लोग VPN और भी सीखेंगे VPN के बारे में। तो एक और मेन कंसेप्ट होता है VPN का, जिसको साइट टू साइट VPN, जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। उसके लिए बड़ा सा आर्किटेक्चर होना चाहिए। फिलहाल हमारे पास जो है अभी इस VPC के अंदर VPN का कंसेप्ट वो है रिमोट एक्सेस VPN का। रिमोट एक्सेस VPN मतलब होता है क्या कि आपका ये जो मेन सर्वर्स है एक जगह में है, एक VPC के अंदर है। वो रीजन हो सकता है क्या, वो रीजन टोक्यो में हो, वो रीजन आपका US में कहीं पे भी हो रीजन। उस रीजन में आपका डेटाबेस सर्वर्स है। जिस डेटाबेस सर्वर को कोई एक्सेस करना चाहता है इंडिया से एक्सेस कर सकता है, या फिर उस कंपनी का एम्प्लॉई अमलान है, ये ट्रेवल करता है, कभी इंडिया में रहता है, कभी पाकिस्तान चला जाता है, कभी चाइना चला जाता है, तो जगह डिफरेंट लोकेशन से एक्सेस करना चाहता है, तो उसको एक्सेस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ क्या कि एक्सेस उसी को मिले, किसी और को ना मिले। इसके लिए मैं VPN का कनेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? और वो एक्सेस जब करे तो उसको सिक्योर चैनल के थ्रू से कम्युनिकेशन हो, टनल के थ्रू से कम्युनिकेशन। सो ऐसा रिक्वायरमेंट है कंपनी का। तो ऐसा रिक्वायरमेंट अगर है कंपनी का, तो AWS अगर इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहा है कोई कंपनी, तो वहां पे आप कैसे करोगे? कैसे वहां पे आप कॉन्फ़िगर करोगे, कैसे सेटिंग करोगे जिसके थ्रू से आपका या एक्सेस मिलेगा? ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? यहाँ पे इस सिनारियो में आप लोगों को समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे? ये जैसे ये आपका क्लाइंट्स है। क्लाइंट्स मतलब क्या बोल रहा है कि ये इंटरनेट में है। क्लाइंट्स है ना, हमारा जैसे ये मशीन है, ये इंटरनेट से कनेक्टेड है, लैब का मशीन इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो वो वहाँ से बैठ करके मैं चाहता हूँ क्या कि कोई मशीन है AWS में जो प्राइवेट सबनेट में बना हुआ है। मैं जानता हूँ कि प्राइवेट सबनेट का मशीन को एक्सेस नहीं कर सकते प्राइवेट IP से। कर सकते हैं क्या? कर सकते डायरेक्टली? चलो सिनेरियो थोड़ा मैं चेंज करता हूँ, हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहे हो मुझे। अच्छा इससे मैं बनाता हूँ ना, सबसे बेस्ट यही रहेगा। समझ लो ये मेरा VPC है और यहाँ पे अभी समझ लो ये मेरा पब्लिक सबनेट है, ये मेरा VPC है और ये मेरा प्राइवेट सबनेट है। पब्लिक सबनेट में मैं बनाया हूँ सर्वर, सो इट्स अ नॉर्मल सर्वर, वेब सर्वर। और ये आपका प्राइवेट सबनेट में मेरा डेटाबेस सर्वर है, DBMS। ठीक है, VPC का IP मैं डाला हूँ 10 रेंज का ही IP मैं डाल दिया, समझ लो ये 16 है। और पब्लिक का मैं डाल दिया हूँ, पब्लिक सबनेट का और प्राइवेट सबनेट का मैं डाल दिया 10 डॉट, थोड़ा सा अलग डालता हूँ मैं इसको, 100 कर दिया। चलो 100.0/24 डाल सकते हैं ना? मीटर दिया, ये तो किसी लोग मीटर दिया। अच्छा
लगाओ डेमो दिखाना पड़ता है आपको बहुत सारा। ये तो ठीक है मेरे अरे ना रे बाबा क्यों मुश्किल। ये सिनेरियो सबको समझ में आ गया क्या? इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का? ये हम लोग पहले भी ड्रॉ किए हैं, देखो प्रीवियस वाला प्रैक्टिकल में होगा। और ये आपका टास्क भी था करना, प्रीवियस प्रैक्टिकल क्लास में मैं दिया था कि करना है ये। मैं सिनेरियो बनाया, अब इसका सवाल नहीं पूछा, अभी सवाल मैं पूछूंगा। देखते हैं कौन बोल पाता है कौन नहीं बोल पाता है। बना लिए? किसी को नहीं हो रहा। चलो क्वेश्चन दे दियो उधर। अभी समझ लो ये मेरा पब्लिक सबनेट है, पब्लिक सबनेट में ये सर्वर को पब्लिक आईपी मिला हुआ रहेगा, है ना। ये प्राइवेट सबनेट है तो इसको पब्लिक आईपी नहीं मिलेगा, है कि नहीं? हाँ, तो ये मेरा यूज़र यहाँ बैठा है आउटसाइड इंटरनेट से जुड़ा हुआ। सो दैट इज इंटरनेट जहाँ पे मेरा यूज़र बैठा है ये, या फिर हम बैठे हैं यहाँ पे। ओके, सो आई एम ए यूज़र। नाउ मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं एक्सेस करूँ किसको एक्सेस करूँ? DBMS। हाँ, क्योंकि ये मेरा ही है ना, AWS को पैसा मैं ही दे रहा हूँ, मेरे अकाउंट से पैसा कट रहा है, मेरा सर्वर है ये, मैं बनाया हूँ, मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। जो प्राइवेट सबनेट में कौन सा है सर्वर है? हाँ, डेटाबेस सर्वर जो है। तो कैसे एक्सेस करें? चलो, ये क्विज है सबके लिए। डायरेक्ट तो प्राइवेट को एक काम करो, एक बार डिस्कस कर लो आपस में, तो GDB हो जाएगा, ग्रुप डिस्कशन है। तो उधर वापस घूम जाओ, तुम थोड़ा दूर घूम जाओ इधर, और आप इधर घूम जाइए। इस ग्रुप का लीडर होगा हमारा जो सबसे लेट आया है। इस ग्रुप में लेट कौन आया सबसे? ये लीडर है, और उस ग्रुप में जो लेट आया है वो लीडर है। तुम्हें क्या नाम तो? जीत हालदार। और इस ग्रुप में जो क्लियर सेट नहीं है वो लीडर है। वो क्या नाम है? प्रीतम ना। टाइम आपके पास सिर्फ 2 ही मिनट का है डिस्कस करने का। मेरा सवाल ये है कि मैं एक्सेस करना चाहता हूँ मेरे डेटाबेस सर्वर को, मैं कैसे करूंगा? यही क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन। मुझे नेट गेटवे के पीछे खर्चा नहीं करना है, ये भी है। मेरी इलास्टिक आईपी नहीं ले सकता है, पोर्ट नहीं कर सकता है, ठीक है? नहीं ले सकते, कंपनी के पास उतना खर्चा करने का नहीं है। इलास्टिक आईपी में बहुत खर्चा है। एक तो आपका इलास्टिक आईपी का चार्जेस लगेगा, और डेटा जितना आप ट्रांसफर करोगे उसके हिसाब से भी बिलिंग आएगा, वो आईपी यूज करके। क्यों लो बेटा साइन नहीं करो। सेम क्वेश्चन फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट ऑल्सो। ऑनलाइन में जितने सारे हो सबके लिए सेम क्वेश्चन है, आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके सर, ओके सर, ओके। এটাও তো একটা প্যারামিটার लेके चाहिए पैरामीटर।
কোশ্চেনটা কি বুঝতে পারলি? এই আমাদের তো কেউ বুঝতে ছবিটা পারেনি কোশ্চেন। ছবিটা এঁকে রেখেছে, এই অ্যাক্সেসটা কি করে হয়? না না ফ্রি আর এটা বলছি না, আমি বলছি নেট গেটওয়ে ইউজ করব না, আমি নেট गेटवे यूज करते सर वेब सर्वर और डीबीएमएस में तो कनेक्टिविटी रहेगा ही हाँ रहेगा। बाय राउटिंग। हाँ लेकिन मैं वो पब्लिक वाला मशीन से नहीं करना चाहता एक्सेस, मैं डायरेक्ट एक्सेस करना चाहता हूँ। सर Private से VPN direct बनाएंगे, VPS दोनों को सेम नेटवर्क में रखना होगा आई थिंक, सेम नेटवर्क में रखना होगा ऐसे ही लग रहा है। अरे भाई तुम लोग डिस्कस करो ना, लीडर कौन है? हाँ, उससे डिस्कस करो, यही तो आंसर करना है। डायरेक्ट एक्सेस करना है मुझे, डायरेक्ट एक्सेस मतलब मैं फिजिकल सिस्टम से ही वो रिमोट सिस्टम को एक्सेस करना चाहता हूँ आरटीपी का थ्रू। देखिए क्या क्या सॉल्यूशन आपके पास है, ये सिनारियो है, सॉल्यूशन क्या आपके पास? 30 सेकंड बचा हुआ है। दस सेकंड है। চলো হয়ে গেছে, টাইম ওভার, অনেকক্ষণ টাইম দেওয়া হয়েছে। चलो बोलो ऋतिक कैसे होगा? काफी आसान क्वेश्चन है, इसमें सही और गलत का कुछ नहीं है, आपको जो समझ में आ रहा है वो आंसर करो, या फिर आपका टीम में जो डिस्कशन हुआ है जल्दी फटाफट, फिर प्रैक्टिकल करना है ना, बहुत टाइम बचा, बहुत टाइम नहीं हमारे पास, 1 ही घंटे का टाइम, बहुत बड़ा प्रैक्टिकल है। खड़े हो जाओ और फटाफट बोल। सर नीचे 10.0.100.0 वो प्राइवेट नेटवर्क है, and यूजर वो प्राइवेट नेटवर्क में नहीं, वो इंटरनेट पे है ये तो। इंटरनेट है। हाँ। तो दोनों के बीच में VPN क्रिएट करेंगे। तो वही तो हम भी बोलते हैं। VPN कनेक्ट करेंगे, VPN के थ्रू से हो जाएगा। ठीक है बैठो, तुम लोगों का क्या आंसर है? सेम VPN थ्रू से माने कनेक्ट হবে। अच्छा दोनों डिफरेंट VPN थ्रू से कनेक्ट, ठीक है तो पूछ लो पीछे कौन है। हाँ बोलो। স্যার ফার্স্টলি ইন্টারনেট ইউজার থেকে পাবলিকে যেতে হবে, পাবলিক থেকে প্রাইভেটে। ठीक है, तो ठीक ही बोला। ठीक ही बोला सर, क्योंकि इस तरह से भी आ सकते हैं। इंटरनेट में है तो इसके बाद ऑब्वियसली पब्लिक आईपी है। तो ये वाला प्रैक्टिकल लोग पहले किए थे, बट सर बाय नेट कॉन्फ़िगरिंग। हाँ नहीं नेट नहीं किए थे, नेट गेटवे अगर करते तो डिलीट हो जाता। सर नहीं सर, जो डीबीएमएस का नेट गेटवे यहाँ नहीं बनाए थे पब्लिक में, हाँ सो वहाँ से तो इसको एक्सेस करके इसको एक्सेस कर पा रहे थे। हाँ सो वैसे कैसे किए? नेट गेटवे नहीं भी रहेगा तो एक्सेस कर पाओ। नेट गेटवे हम लोग किस लिए किए थे? नेट गेटवे हम लोग प्राइवेट आईपी को इंटरनेट देने के लिए किए। नहीं आप बोले डीबीएमएस के पास पब्लिक आईपी भी हम नहीं देंगे। नहीं देंगे लेकिन इंटरनेट चलेगा, इंटरनेट चलेगा, ये वर्ड आया ना इंटरनेट चलेगा, वो कहाँ से चलेगा? नेट गेटवे के थ्रू से चलेगा। लेकिन आप नेट गेटवे नहीं भी लगाओगे फिर भी आप वो पब्लिक के थ्रू से प्राइवेट में आ सकते हो ना।
नेट गेटवे को वहाँ पे कोई फंक्शन ही नहीं है। नेट गेटवे सिर्फ लगाया गया है क्योंकि वो सारा प्राइवेट आईपी रेंज में जितने सारे मशीन है प्राइवेट नेटवर्क में सबको इंटरनेट मिले। नेट का काम तो वही है। मेरे केस में मैं अगर VPN यहाँ पे बनाऊंगा तो इंटरनेट नहीं मिलेगा, अभी भी इंटरनेट नहीं मिलेगा मशीन को, लेकिन मैं एक्सेस भी कर पाऊंगा प्राइवेट आईपी के। सर ये अगर जो इसको एक्सेस करेगा तो इसको जानता भी तो होगा। ऑनलाइन में कोई बोलना चाहता है अबाउट दिस सिनेरियो कि कैसे होगा एक्सेस? सर VPN से कनेक्ट करके नहीं होगा? हाँ VPN कनेक्ट करके होगा। तो सर रिमोट VPN के थ्रू। हाँ हाँ, तो हम लोग क्या करने वाले हैं इस सिनेरियो के लिए, इस सिनेरियो के लिए, प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन हमारे पास क्या है? वी कैन यूज अ VPN here, we can use a VPN here, simply we can create a VPN। तो AWS में ऐसा इंस्टेंस है, VPN का इंस्टेंस है, आप बना सकते हो, वो फ्री है। जैसे एक VPN है आपका ओपन VPN, सो ओपन VPN, ये आप अगर गूगल में सर्च करोगे आपको मिलेगा भी। ओपन VPN इज फ्री हेयर, ओके, सो फ्री टायर अकाउंट में आपको मिल जाएगा। सो ओपन VPN आप क्रिएट करोगे तो ये VPN क्या बनेगा? VPN सर्वर बनेगा। इट विल बिकम ए VPN सर्वर, दैट इज कॉल्ड VPN एक्सेस सर्वर। और इस VPN के साथ आपका कनेक्टिविटी होगा VPC के, और ये VPN सर्वर के साथ ये जो यूजर होगा, यूजर को क्या करना पड़ेगा? कनेक्ट करना पड़ेगा VPN सर्वर को। मतलब ये यूजर क्या बन जाएगा? VPN क्लाइंट। ठीक है, ये VPN क्लाइंट बन जाएगा। तो रियल लाइफ सिनेरियो में ऐसे होता है। और ये VPN क्लाइंट बनने के बाद जब कनेक्ट हो जाएगा VPN सर्वर से, तो एक टनल क्रिएट हो जाएगा इसके बीच में, ऐसा टनल क्रिएट हो जाएगा। और यूजिंग दिस प्राइवेट IP एड्रेस दे कैन कम्युनिकेट विदाउट यूजिंग एनी पब्लिक IP। और ये कनेक्टिविटी जब एस्टेब्लिश हो जाएगा तब यूजर यहाँ पे किसी भी सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। यूजर क्लाइंट क्योंकि वो कनेक्ट हो गया ना, कनेक्ट हो चुका है। अब वहाँ पे जो सारे मतलब कंप्यूटर्स हैं, मशीन है, उसको यस क्लियर फॉर एवरीवन? एनी क्वेश्चन? नो सर, ये प्रैक्टिकल में देखा होगा कि ओपन VPN सर्वर मतलब जो टनल क्रिएट होगा उसमें तो कुछ प्रोसेस होगा ना, कि ऐसे ही तो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो जाएगा। सबको समझ में आ गया ये सिनेरियो? सिनेरियो कंप्लीट। सर एक बार और यस सर। ये मेरा प्राइवेट सबनेट है, जिस प्राइवेट सबनेट में सर्वर्स है। अभी प्राइवेट सबनेट में है तो इसको पब्लिक IP नहीं मिला ना, तो पब्लिक IP नहीं मिला मतलब ये मशीन्स बाहर में कम्युनिकेशन नहीं कर सकता किसी से भी। सिंपल सा बात है, कम्युनिकेशन नहीं कर सकता है इस सिनेरियो में। लेकिन मैं चाहता हूँ क्या कि मेरा जो यूजर कोलकाता में बैठा है, जैसे मैं कोलकाता में बैठा हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा सर्वर को मैं एक्सेस करना जो प्राइवेट सबनेट में है। मैं कैसे करूँगा? ये था क्वेश्चन। यही क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों को ग्रुप डिस्कशन दिया था। तो एक तरीका था ये कि मैं पहले अपना पब्लिक सबनेट में जाऊं, पब्लिक सबनेट का जो सर्वर है उसको एक्सेस करूं, उसके थ्रू से फिर मैं प्राइवेट सबनेट को एक्सेस करूं। ये पहले भी हम लोग कर चुके हैं प्रैक्टिकल। याद आ रहा है? हाँ सर। अगर याद नहीं आ रहा तो पुराना क्लास रिकॉर्डिंग देखना, वो वहाँ पे है प्रैक्टिकल। वो जो ड्राइव है ना, ड्राइव पे तो उसी ड्राइव में सारा रिकॉर्ड है। प्राइवेट सबनेट और पब्लिक सबनेट का जहाँ पे डिस्कशन हुआ, उसको अपडेट कर दें। ये था सिनेरियो। ऐसे हम लोग कर सकते थे। लेकिन मैं क्या बोला कि मेरे को तो एक्सेस डायरेक्ट करना है। मैं कितने बार पब्लिक सबनेट के थ्रू से जाऊंगा? तो मैं डायरेक्ट एक्सेस करना चाहता हूं और सिक्योर भी होना चाहिए वो। सिक्योर भी है, फ्री भी है। तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इसके लिए क्या? VPN। सो यहाँ पे AWS में एक VPN सर्वर है, दैट इज कॉल्ड ओपन VPN। और इस ओपन VPN लिनक्स बेस्ड मशीन बनेगा ही, इट विल बिकम ए सर्वर। और ये सर्वर बनने के बाद ये एक एक्सेस देगा क्लाइंट्स को जो ओपन VPN क्लाइंट होगा।
तो क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को, सर्वर चेक करेगा यूजर नेम पासवर्ड, अगर वो सही डाल रहा है तो कनेक्टिविटी हो जाएगा। कनेक्टिविटी होने के बाद आपका टनल क्रिएट हो गया। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे सिस्टम, जो भी सिस्टम से प्राइवेट सबनेट में उसको एक्सेस कर सकते हो। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? हाँ, ऑनलाइन में जो था उसको समझ में आया क्या? ये क्लियरिटी आया? नहीं आया तो हम लोग प्रैक्टिकल में जब प्रैक्टिकल करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जो मैं ये बात कर रहा था, ये वाला कंसेप्ट का, उसी का मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे भी सेम चीज मैं AWS में करना चाहता हूँ। सो हम लोग फ्री टायर अकाउंट का ही सारा कुछ यूज करने वाले हैं, इसमें हम लोगों का कोई पैसा ना लगे। तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। प्रैक्टिकल में चले गया? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? सिनारियो आप लोग इसको बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसी को प्रैक्टिकली करेंगे। तो AWS अकाउंट यूज करना चाहते हैं हम, अपना यूज करते हैं। किसका यूज करें? सर बोला आपका कर लीजिए ऑथेंटिकेटर। हाँ, ऑथेंटिकेटर, गूगल ऑथेंटिकेटर कर लिया। क्या करेगा वो? कुछ दिन तक फ्री रहता है, स्किप करने का ऑप्शन देता है, उसके बाद वो मैंडेटरी कर दिया। अभी आपको MFA लगाना ही है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। सर मेरे पास है ऑलरेडी। क्या है? पहले ही चांस में सर गूगल ऑथेंटिकेटर से ही मैंने किया था MFA। अच्छा, सिक्योरिटी सर। हाँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में चले क्या? हाँ सर, एकदम। ऑफकोर्स। बाकी लोगों को क्या कहना है? सर तो कहना है प्रैक्टिकल। बाकी लोगों का करना है, कहना है कुछ और क्या? अभी कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया? मतलब ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इसको, इसमें क्लैरिटी आया या नहीं आया? यस सर, क्लियर। ओपन सोर्स। शर्मिष्ठा, संजना, आकाश, विकास, यस सर। समझ में आ गया? यस सर। हाँ यस सर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। सो VPN इज अ Yes, मोस्ट लाइक important topic in a VPC, and it's very interesting part of the practical। कि आप VPC कनेक्ट करोगे, VPC से आपका कनेक्टिविटी नहीं होगा, लेकिन VPN को आप जब कनेक्ट करोगे तो फिर उस टाइम आपका कनेक्टिविटी हो जाएगा। तो काफ़ी मज़ेदार प्रैक्टिकल है, आप करोगे तो मज़ा आएगा। जब प्रैक्टिकल होगा तब, नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा, हो जाएगा तो मज़ा आएगा, है ना? तो एक बार हम लोग कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं कैसे करते हैं। सो मैं अपना अकाउंट से लॉगिन कर रहा हूँ। आई थिंक मैक्सिमम लोगों का अकाउंट बन गया होगा अभी आपका AWS में। अगर नहीं बना है तो बना लो फटाफट, बिकॉज आगे चल के आपका एग्ज़ाम में, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आपका प्रैक्टिकल दिया जाएगा करने के लिए आपको। और अभी एग्ज़ाम का जो पैरामीटर है वो चेंज हो गया है। मतलब आपको हर पैरामीटर में पास करना पड़ेगा। पहले ऐसा एग्ज़ाम पॉलिसी नहीं रहा, पता है, मालूम है? मतलब जो कंप्यूटर एग्जाम होता है उसमें एक्सप्लेन कीजिए सर। लास्ट वाला न्यू पॉलिसी में होगा। रुको मैं ऑथेंटिकेटर डाल देता हूँ ना। अगर 30 मार्क्स का पेपर है तो उसमें 15 मार्क्स लाना होगा। 50 अब मार्क्स 15 मार्क्स हाँ लाना होगा। अगर उससे कम लाते हो तो फेल हो जाओगे। हाँ, सही सब सही पकड़े आप। तो इसका मतलब हो गया कि आपका जितना सारा एग्जाम होगा, जैसे आपका थ्योरी एग्जाम हुआ उसमें भी पास करना है, 50% लाना है। प्रैक्टिकल एग्जाम है उसमें भी 50% लाना है। वाइवा होगा, वाइवा में 50% लाना है। किसी एक में अगर 50% नहीं आया, भले टोटल में आपका 50% से ज़्यादा आ गया हो, लेकिन एक में फेल करिए तो आपका उसमें बैकलॉग आ गया, मतलब फेल हो गए। समझ में आया? ওইটা নিয়ে প্রবলেম না মেন কথা অত বড় বড় ছিল দিতে পড়া যায় মানে আর এক একটা ওয়ার্ড কাউন্ট ছিল পৌঁছানো না নতুন। चलो तो हमारा जो ये मेन डैशबोर्ड है, उस डैशबोर्ड में हम लोग चलते हैं, एक बार देख लेते हैं मेरा बिलिंग कुछ आया या नहीं आया।
लास्ट टाइम में तो कुछ डॉलर दिख रहा था। सो नाउ इट इज 0, उसको वो लोग फ्री मेरा जो आवर्स था उससे माइनस कर दिया मेरे ख्याल से। चल, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, बीपीसी बनाना है। ओके, बीपीसी सबसे पहले हम लोग बीपीसी क्रिएट करते हैं। आप अगर चाहो तो सेम सिनेरियो को कर सकते हैं। यहाँ पे जो हम लोग बनाए हैं प्राइवेट सबनेट पब्लिक सबनेट करके है, और पब्लिक सबनेट पर ग्रेड एक्सेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर पब्लिक में भी बना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं तो तो प्राइवेट में कनेक्टिविटी लाना डायरेक्टली। हाँ तो करते हैं बीपीसी। স্যার বলছি এই 2-3 দিনে কি এটা করেছেন কিছু কাল অবশ্যই হার্ট স্যারের যেটা সেশনটা যেটা করতে হবে আপনাদের কাল পরশু কিছু করেছিলেন? লাস্ট কত আছে আপনার? লাস্ট আছে 229। হ্যাঁ, লাস্ট কাম তাহলে দিতে হবে 235 হবে। तो मैं क्रिएट करता हूँ बीपीसी। बीपीसी का नाम डाल दिया प्राइवेट नहीं, बीपीसी का नाम दिया के 350। आज हम लोग 350 को यूज़ करते हैं। और इस बीपीसी का नेटवर्क आईडी मैं डाल दे रहा हूँ 16 और क्रिएट कर दे रहा हूँ। बाकी का सेम है, बीपीसी क्रिएट करना, सबनेट्स क्रिएट करना जैसे हम लोग पहले किए थे। क्रिएट सबनेट 350 के अंदर बनाएंगे सबनेट हम लोग। ये मेरा सबनेट बोलेगा पब्लिक सबनेट। पब्लिक नाम डालते हैं इसे। और इसका CIDR में डाला 10.0.1.0/24 और मैं क्रिएट कर दिया। और एक सबनेट बनाते हैं, क्या प्राइवेट सबनेट। इसका 10.0.100 था ना, 100.0/24। ठीक है, क्रिएट कर दिया। तो प्राइवेट सबनेट पब्लिक सबनेट क्रिएट हो गया। अभी चलना हम लोगों को इंटरनेट गेटवे में, और यहाँ पे हम लोग एक गेटवे ले लेते हैं IGKK 350 IGW और क्रिएट कर दिया। गेटवे भी हो गया क्रिएट। अब चलते हैं हम लोग रूट टेबल में, और हम लोग अपना रूट टेबल क्रिएट करते हैं। अरे रूट टेबल हो गया एक पब्लिक के लिए, पब्लिक रूट टेबल। इसको क्रिएट कर दिया। बीपीसी सिलेक्ट करना है 350 के अंदर। और दूसरा रूट टेबल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं प्राइवेट के लिए। समझ रहे हो, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं प्रैक्टिकल, दोबारा से मैं कर रहा हूँ। पब्लिक में मेरा राउटिंग होगा, और राउटिंग के लिए मैं यूज़ करूँगा इंटरनेट गेटवे को। सो मैं रूट्स में चलता हूँ और एडिट करता हूँ। यहाँ पे मैं राउटिंग ऐड कर देता हूँ कि मेरे को ये पब्लिक में जाना है। मुझे कैसे जाना है? गेटवे के थ्रू से। और ये इंटरनेट गेटवे आपका कहाँ गया? अटैच नहीं किया क्या मैंने? से नहीं हुआ, अटैच नहीं किया था। ओहो, तो अटैच नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को डिटेल्स दिख रहा है ना यहाँ पे, इसलिए नहीं आ रहा था।
तो यहाँ पे आपको चेक करना है और ये आपको अटैच करना है, अटैच टू VPC, अदरवाइज ये रूट टेबल में दिखेगा ही नहीं आपको। ठीक है, अटैच हो गया। अब चलते हैं रूट टेबल, दोबारा से करते हैं रूट्स और ऐड रूट्स में चलते हैं, वापस करते हैं और इंटरनेट गेटवे चूज करते हैं। अब दिखेगा ये हो गया। राउटिंग कर दिया, सबनेट्स एसोसिएशन में गए और यहाँ पे आपको एडिट सबनेट एसोसिएशन करना है। यहाँ पे मेरा पब्लिक ही होगा बिकॉज मैं पब्लिक में हूँ। सेव एसोसिएशन कर दिया, पब्लिक वाला हो गया। प्राइवेट के लिए क्या करना है, प्राइवेट के लिए मुझे राउटिंग नहीं करना है, सिर्फ मुझे एसोसिएट करना है। क्या हो गया, क्यों अच्छे? हेलो, ये मेरा प्राइवेट है। रूट्स में मुझे कुछ नहीं डिफाइन करना फिलहाल के लिए। इतना तो हम लोग पहले भी किए थे। अभी हम लोग सिस्टम बनाते हैं और चेक करते हैं क्या होता है। लिनक्स बनेगा ना सर? लिनक्स EC2 इंस्टेंस बनेगा। तो सिनारियो के हिसाब से मेरा ये कंप्लीट हो गया कॉन्फ़िगरेशन, ये मैं इसको कर दिया और ये भी मैं इसको कर दिया, है ना, दोनों को कंप्लीट कर दिया, है कि नहीं? हाँ सर। अब EC2 इंस्टेंस बनने के बाद ओपन VPN अभी मुझे क्या बनाना है, अभी मुझे VPN सर्वर बनाना है। ठीक है, तो अब ये आप लोगों के लिए नया स्टेप होगा। तो VPN सर्वर कैसे बनाएंगे, चलते हैं। ये लॉन्च इंस्टेंस में आना है आपको, जहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे VPN दिखेगा नहीं कहीं। सो आपको करना क्या है, ब्राउज फॉर मोर AMIs में जाना है, Amazon मिसिंग इमेज, ये जो ऑप्शन है ना, ब्राउज मोर AMIs, इसमें क्लिक करना है। और यहाँ पे भी आपको अलग अलग टैब दिखेंगे यहाँ पे, जिसमें से आपको थर्ड टैब में आना है जहाँ पे लिखा है मार्केट प्लेस। क्या लिखा है? मार्केट प्लेस, AWS मार्केट प्लेस, इसमें आना है और सर्च करना है क्या, ओपन VPN। तो क्या लिखना है, ओपन VPN। क्लियर? लिखो नाइस, लेकिन तो पारबे ना करते। लॉन्च इंस्टेंस এ যাবে, मोर AMI তে যাবে click AWS market and choose select marketplace, then search open VPN। marketplace में जाकर के open VPN को सर्च करना है। ठीक है, तो पहला जो आपका आ रहा है देखो यहाँ पे, ये open VPN एक्सेस सर्वर है ना, ये वाला ऑप्शन को लेना है आपको। ठीक है, क्लियर? तो क्या करना है यहाँ पे, सेलेक्ट। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि इसका चार्जेस क्या है। कितना दिखा रहा है चार्जेस? ज़्यादा नहीं है, पर आवर बेसिस पे ये 0.023 डॉलर का चार्जेस करेगा। बट हम 0.23 US डॉलर। हाँ, तो हम लोग फ्री ट्रायल वाला यूज़ करेंगे तो मेरे ख्याल से चार्जेस नहीं लगेगा। सो इफ़ यू गो टू प्राइसिंग में आपको दिखेगा यहाँ पे कि आप अगर फ्री ट्रायल यूज़ करोगे तो आपका नहीं लगेगा। 750 आवर्स तक आपका जो फ्री आवर्स दिया गया है, उससे ज़्यादा यूज़ कर लोगे तो लगेगा। ठीक है, अब एक सब्सक्राइब कर लेते हैं, सब्सक्राइब नाउ। सब्सक्राइब करेंगे तभी होगा, मतलब सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करोगे तो आपका यहाँ पे इमेज में आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इमेज में आपका आ गया AMI ओपन एक्सेस VPN कम्युनिटी आ गया ना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आ गया। इट्स ए लिनक्स बेस्ड मशीन। क्लियर? समझ गए? ये यहाँ पे आपका दिखेगा
AMI फ्रॉम कैटलॉग में आओगे, यहाँ पे देखिएगा ओपन VPN, यहाँ पे आ गया आपका वेरीफाइड है प्रोडक्ट। यूजर नेम इसका बाय डिफॉल्ट रूट दिखा रहा है, ठीक है। उसके नीचे में आना, यहाँ पे इंस्टेंस टाइप आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे फ्री टायर आ रहा है कि इंस्टेंस टाइप में अगर फ्री टायर आ रहा है तभी आपका फ्री है, अगर फ्री टायर नहीं दिख रहा है तो फ्री नहीं है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? वो कोई भी इंस्टेंस हो, लिनक्स का हो, सर्वर का हो, आपको ये चेक करना है। क्या चेक करना है? इंस्टेंस टाइप। इसमें आपको क्लिक करके देखना है कि फ्री टायर वाला चेक है या नहीं। तो फ्री टायर वाला चेक नहीं, नीचे वाला चेक है, देखो आपको क्या करना है, फ्री टायर को चेक करना, ठीक है। क्लियर हो गया। अब जैसे हम लोग नॉर्मल इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, की पेयर बनाते हैं, वैसे की पेयर बनाएंगे। तो लिनक्स बेस्ड मशीन है, यहाँ पे मैं की पेयर जो बनाऊंगा पीपी के, तो मैं पुट्टी में यूज करने वाला हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट पीपी के बना रहा हूँ। नहीं तो मेरे को फिर क्या करना पड़ेगा, की जेन करना पड़ेगा, पुट्टी जेन से मुझे अलग से फिर ट्रांसफर करना पड़ेगा पीएम से पीपी के। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे पीपी के फाइल डाउनलोड कर सकते हो जो पुट्टी के लिए कंफर्टेबल है, ठीक है। की डाल दो यहाँ पे, कि मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ VPN का की, VPN की 1 में डाल दिया और क्रिएट कर दिया। तो ये पीपी के फाइल डाउनलोड हो गया। ओके, क्लियर। अभी आपको नेटवर्क सेटिंग्स में क्या करना है, एडिट करना है या नहीं करना है? तो किस पे करना है? VPC कौन सा? 350। और सबनेट क्या करना है? सबनेट तो ये तो सब प्राइवेटली कनेक्ट हुआ, तो प्राइवेट नहीं रहेगा। प्राइवेट रहेगा तो डायल कैसे होगा? VPN सर्वर को तो पब्लिक में डालना पड़ेगा आपको। ये तो VPN सर्वर तक हम पब्लिक होगा सर। ये जो आउटसाइड वाला रहेगा उसको तो ऑलरेडी पब्लिक आईपी मिल रहा है, तो VPN पब्लिक होगा तो वहां से समझ रहे हो? मैं यहाँ पे VPN को पब्लिक में ही रखूंगा। मैं क्यों रखूंगा ये बता रहा हूँ। बिकॉज मेरा VPN सर्वर जो है वो VPN सर्वर हमारे लिए तो रीचेबल होना चाहिए ना। मैं इंटरनेट में हूँ, ये इंटरनेट में रहेगा तभी ना हम इसको कनेक्ट कर पाएंगे। इसको मैं अगर इसी को अंदर डाल दिया तो मैं कनेक्ट करूंगा कैसे? समझ रहे हो? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन कि VPN सर्वर को कहाँ रखना है आपको? yes, sir, clear, पब्लिक सबनेट में। तो मैं यहाँ पे क्या चूज किया? पब्लिक। और क्या करना है यहाँ पे आपको? हाँ, एनेबल करना है। क्या एनेबल करना है? ये पब्लिक आईपी मिले किसको? सर इसको VPN के लिए मैं कर रहा हूँ, VPN सर्वर के लिए, ठीक है। अच्छा, सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे क्रिएट हो रहा है और बाय डिफॉल्ट ये कुछ पोर्ट्स देखो यहाँ पे अलाउ हो जा रहा है कि SSH अलाउ हो गया, HTTPS अलाउ हो गया 443, कस्टम TCP में 943 अलाउ हो गया। 943 इज डेडिकेटेड पोर्ट फॉर ओपन VPN, और एक पोर्ट है 945 ये, और एक कस्टम UDP पोर्ट होगा ओपन जो होगा 1194 जिसके थ्रू से मेरा कनेक्टिविटी होगा। देखो ऑटोमेटिकली अलाउ हो गया। सो दीज आर द पोर्ट्स दैट यूज्ड बाय द ओपन VPN, दैट्स व्हाई वी शुड अलाउ दिस पोर्ट्स। मैं अलाउ नहीं भी करूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखो वो अलाउ कर दिया सिक्योरिटी ग्रुप को। इज इट क्लियर? तो आपको इसको बंद नहीं करना है, अलाउ ही रखना है, नहीं तो VPN को कनेक्ट नहीं करना है। हो गया। और ये भी एक मशीन है, इसको भी जगह स्टोरेज चाहिए, 8 GB का ये स्टोरेज ले रहा है। और फिर लॉन्च इंस्टेंस कर देना। अभी मेरा इंस्टेंस क्रिएट हो गया है ना। आप अगर व्यू जाओगे, व्यू में जाओगे तो देखोगे यहाँ पे आपका एक इंस्टेंस दिख रहा है यहाँ पे, एंड दैट इज द, इसका नाम है, इसका एक नाम डाल देता हूँ। इसका नाम है VPN सर्वर। VPN सर्वर। ये क्या बना? VPN सर्वर बना। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये VPN सर्वर है, पब्लिक सबनेट में है, इसको पब्लिक आईपी भी मिलेगा और प्राइवेट आईपी भी मिलेगा। बिकॉज मैं VPN सर्वर को कहाँ पे रखा हूँ?
मैं इसमें डाला हूँ, है ना, इसके अंदर डाला हूँ, ये मेरा VPN सर्वर इसके साथ कनेक्टेड है। ओके, तो पब्लिक सर्वर बनाना पड़ेगा या नहीं बनाना पड़ेगा? हाँ सर, पब्लिक सर्वर में बनाना पड़ेगा। सर किसके लिए क्या पब्लिक सर्वर बनाना पड़ेगा? मतलब ओपन VPN सर्वर के लिए? हाँ सर, हाँ सर, एक्चुअली तो वही पब्लिक तो आप लिए है, जैसे नेट गेटवे में भी हम लोग पब्लिक सबनेट लिए थे, तो वैसे VPN में भी तो पब्लिक सबनेट ही ले रहे हैं। सो एक्चुअली नहीं बनाना है। बनाना पड़ेगा, उसके लिए अलग से बनाना होगा। मतलब पब्लिक सबनेट में बना के रखा है तब ना मैं इसको पब्लिक सर्वर डाला। वो तो बनाना होगा, वही तो बोला, अब तो नहीं बनाना होगा। नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ कि बनाना पड़ेगा या नहीं बनाना पड़ेगा? अब नहीं बनाना पड़ेगा। अब क्यों बनाओगे? वो तो बना चुके हैं आप ऑलरेडी। VPN के लिए VPN को लोकेट कहाँ पे करेंगे? पब्लिक सबनेट में। VPN को कहाँ पे लोकेट किया हम लोग? पब्लिक सबनेट में। इसका मतलब मुझे पहले से पब्लिक सबनेट क्रिएट करके रखना पड़ेगा, इसलिए मैं क्रिएट कर लिया। मैं 2 सबनेट बनाया था, एक प्राइवेट बनाया था और दूसरा पब्लिक बनाया था। ठीक है, समझ में आ रहा है? VPC के बाद आपको सबनेट बनाना है 2, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। प्रॉपर राउटिंग करना है, इंटरनेट गेटवे प्रॉपर दिखाना है, तभी इसको VPN सर्वर को इंटरनेट मिलेगा। ठीक है, VPN सर्वर को इंटरनेट नहीं मिला तो कनेक्टिविटी भी नहीं होगा। क्यों लोग बहुत चले गए? गेम खेलছে? ओके, क्लियर? अब एक हम लोग बनाते हैं अपना सर्वर, चलते हैं EC2 इंस्टेंस में और हम लोग एक खुद का सर्वर क्रिएट करते हैं। सो नाउ इट इज माय सर्वर। DM बेस रहेगा ना सर, डाटा बेस? हाँ, कोई भी एक मशीन ले लेते हैं ना, समझ में आ जाएगा। सो विंडोज चलते हैं, विंडोज में, और विंडोज के लिए मैं नहीं, मतलब ये सर्वर प्राइवेट सबनेट में रहेगा ना? हाँ। सो फ्री टायर अकाउंट यूज कर रहे हैं हम लोग, तो फ्री टायर में मैं एक सर्वर लेता हूँ, दैट इज 2019 सर्वर, और यहाँ पे मैं फ्री टायर, देखो यहाँ लिखा है, तो इंस्टेंस टाइप हमेशा देख लेना कि यहाँ पे फ्री टायर है या नहीं। अगर फ्री टायर है तभी लेना, अदरवाइज आपका बिलिंग आएगा। ठीक है, की पेयर क्रिएट करना है, तो ये आपका सर्व का की है, सर्वर का की है। नॉर्मल मैं क्रिएट कर लिया, की पेयर भी डाउनलोड हो गया। हीट में चलते हैं और यहाँ पे भी हम लोगों को चेंज करना है। की করব এখানে? हेलो, চেঞ্জ করব স্যার। की করব? একে 350 টা কথা 350। और सबनेट में क्या करना है हम लोगों को? सर्वर कहाँ पे बना रहे हैं? प्राइवेट। प्राइवेट। तो प्राइवेट सबनेट में बनाना है, बिकॉज हम लोगों का सिनारियो के हिसाब से सर्वर कहाँ पे रहेगा? प्राइवेट सबनेट में, है कि नहीं? इसलिए हम लोग ये सबनेट कहाँ पे चूज कर रहे हैं? प्राइवेट। ऑटो असाइन पब्लिक आईपी देना है या नहीं देना है? তোমার পাশে যে বসে আছে ও কি বলছে? দিতে হবে কি দিতে হবে না? ऑटो ऐसा देते হবে ना, क्यों नहीं देना है? क्योंकि ये प्राइवेट में है ना, ये प्राइवेट में है तो प्राइवेट आईपी ही लेगा, ये पब्लिक आईपी इसको नहीं चाहिए। पब्लिक आईपी पब्लिक सबनेट के लिए है। यहाँ पे RDP को अलाउ हो रहा है बाय डिफॉल्ट, बिकॉज विंडोज का मशीन है। RDP के थ्रू से हम लोग मशीन को एक्सेस करेंगे, रिमोट एक्सेस करेंगे। ओके, बाकी सब सेम रखना है, लॉन्च कर देना है इंस्टेंस को। सर, एक क्वेश्चन पूछिए। घर से बाहर का यूजर है, ठीक है, अगर हम पहले घर का ही आदमी है लेकिन घूमने के लिए बाहर गया है। सर मेरा क्वेश्चन सुनिए, अगर हम पहले भी अगर प्राइवेट में जाना चाहते थे तो पब्लिक को रिक्वेस्ट करते थे, पब्लिक हमको प्राइवेट में भेज देता है, ठीक है, बट अभी भी तो हम VPN को पासवर्ड और नेम देंगे तब ना वो हमको प्राइवेट में भेज रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? हमको इसमें दोनों इसमें बहुत डिफरेंस है। अरे बहुत डिफरेंस है, जब करेंगे प्रैक्टिकल तो समझ में आएगा। देखो तुम कैसे जा रहे थे? हम
पहले कैसे आ रहे थे? पहले तुम यहाँ से पब्लिक में आते थे, इस मशीन को पहले रिमोट लेते थे, फिर रिमोट का रिमोट करते थे, इसके अंदर से फिर से रिमोट एक्सेस करते थे इस मशीन को। टाइम टेकिंग अब इधर से रिमोट हो जाएगा। हाँ, बट वो भी सर पब्लिक सबनेट के थ्रू ही जा रहा है। अरे सर्वर को तो पब्लिक में डालना पड़ेगा, नहीं तो कनेक्टिविटी कैसे होगा? जैसे नेट गेटवे को हम लोग पब्लिक सबनेट में रखे थे, वैसे इस वीपीएन को भी पब्लिक सबनेट में ही रखना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो फिर हम उसको इंटरनेट वीपीएन को रिक्वेस्ट कैसे करेंगे? रिक्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। वही जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर वीपीएन सर्वर को मैं अलमारी में डाल दिया, बंद करके रख दिया, उसका रिक्वेस्ट कैसे जाएगा? नहीं जाएगा। इंटरनेट लेने के लिए पब्लिक वो तो एक तरह गेटवे की तरह काम कर रहा है ना, इसलिए VPN इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ गेटवे जो जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है। समझ रहे हो? अच्छा, ये मेरे सर्वर क्रिएट हो रहा है नाउ। सर्वर का जो की है वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि दैट इज अ प्राइवेट, पब्लिक आईपी इसको नहीं मिला, सिर्फ प्राइवेट आईपी ही मिला है। और जो रेंज हम लोग डिफाइन किए थे 100 रेंज, उसी रेंज का आईपी मिला है। और ये VPC है और ये सबनेट है, प्राइवेट सबनेट। ओके, तो ये मुझे दिख रहा है। अभी मैं एक बार इसको ट्राई करता हूँ एक्सेस करने का, और वो देखते हैं होता है या नहीं होता है। सो मैं गेट पासवर्ड कर रहा हूँ एक बार, नहीं होगा मेरे ख्याल से, अभी टाइम लगेगा, बिकॉज अभी तक ये 2x2 चेक पास नहीं हुआ है। तब तक हम लोग रिमोट डेस्कटॉप को डाउनलोड कर लेते हैं। ये मेरा रिमोट डेस्कटॉप का फाइल है और गेट पासवर्ड में भी आ गया है ना। अभी मैं प्राइवेट की फाइल जो है यहाँ पे अपलोड करूँगा। जो सर्वर का की है ये फाइल, इसको मैं यहाँ पे ओपन कर दूँ। सो ये अभी जीत हल्दर पढ़ के सुनाएगा क्या लिखा है। जीत पढ़ो तो, एक की लगा। अच्छा, रुद्र पढ़ो। अरे मीनिंगफुल कुछ पढ़ो जिससे समझ में हम लोग। सर वो तो सर इनक्रिप्टेड वर्ड है। Yes, so that is called encryption. That is called cipher text. जो आप देख रहे हो लेकिन आप रीड नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना, जिसको सिफर बोलते हैं। डिक्रिप्ट कर दिया और ये पासवर्ड भी मेरे पास आ गया। दैट इज ए पासवर्ड जो मैं कॉपी कर लिया। अभी मैं अगर इस मशीन को एक्सेस करना चाहता हूँ, सर्वर को, कर पाऊंगा क्या? हाँ? कर पाऊंगा? हाँ सर, बाय वीपीएन तो चलते हैं, कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट ही नहीं होगा अभी तो नहीं होगा सर। हो रहा है कनेक्ट? नहीं होगा, लेकिन मुझे करना है। और करने के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ यहाँ पे? अभी आगे का स्टेप आपको देखना है कि कैसे VPN यहाँ पे आप यूज करोगे, कैसे कॉन्फ़िगर करोगे। बिकॉज जब तक VPN प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर नहीं करोगे, आपका कनेक्टिविटी भी नहीं होगा। ठीक है, कर क्या रहा है? शायद VPN को आपसे सर्वर के साथ अटैच करता हूँ। नहीं, VPN को VPN सर्वर बनाना है। ये तो मशीन अभी बन गया मेरा। अभी VPN को क्या करना है? कनेक्ट करना है। तो VPN सर्वर को यहाँ पे मैं चेक किया और क्या किया? कनेक्ट, है ना। यहाँ पे IP दिख रहा है कि ये IP है 34234। इस IP को आप क्या करो? कॉपी कर लो। यूजर नेम क्या दिखा रहा है? रूट। ठीक है, अभी आप क्या करना है? आपको पुट्टी ओपन करना है। क्या ओपन करना है? तो लिनक्स बेस्ड मशीन है, इसके लिए मैं पुट्टी यूज कर रहा हूँ। IP को यहाँ पे क्या करना है? आपको पेस्ट कर देना है। मैं कॉपी कर लिया था, पेस्ट कर देना है। देन गो टू SSH, ये पहले भी कर चुके हैं। ऑथ में जाना है, क्रेडेंशियल में जाना है, और यहाँ पे आपको ब्राउज करना है प्राइवेट की, जो मैं डाउनलोड किया हूँ, VPN की 1, ये डाउनलोड किया था। कर दिया, अभी ओपन कर देना है, यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। ये मशीन आपका रेडी हो गया। देखते बच्चों, पीछे नहीं गिरा क्वेश्चन, सामने क्वेश्चन है, सामने जाएगा। अच्छा, हो गया। अभी लॉगिन इज रूट दिखा रहा था, रूट से करते हैं, बिकॉज रूट ही दिख रहा है वहाँ पर यूजर नेम मुझे। और ये मुझे कुछ मैसेज भी शायद देगा कि रूट से एक्सेस नहीं होगा। क्या बोल रहे हैं? प्लीज लॉग इन एज द यूजर ओपन VPN एज, ये पूरा यूजर नेम ही है।
रूट से नहीं, तो फिर से मुझे पुट्टी ओपन करना पड़ेगा। क्लियर? सेम प्रोसेस फिर से करना है। मैं SSH में गया और ऑथ में गया, क्रेडेंशियल में गया और मैं ब्राउज कर दिया और मैं वापस ओपन कर रहा हूँ। अभी मैं क्या लिखूंगा? ओपन VPN एज एंटर। अभी आपको देखो एक्सेस मिल गया। मिला एक्सेस? नाउ अभी आपको ध्यान से करना है। यहाँ पे स्टेप्स को ध्यान से नहीं करोगे तभी आपका VPN सर्वर बनेगा। सो क्या लिखा है? प्लीज एंटर टू इंडिकेट योर एग्रीमेंट। तो यहाँ पे क्या लिखना है? यस लिखना है ना? आप एग्रीमेंट के लिए तैयार हो? यस। अभी क्या पूछ रहा है कि डिफॉल्ट सेटिंग रखना है कि सर्वर का? प्राइमरी एक्सेस सर्वर आपका ये होगा, प्राइमरी एक्सेस सर्वर ये होगा, प्राइमरी VPN सर्वर होगा। तो क्या करना है? यस। जब वहां पे यस लिखा है मतलब एंटर मारोगे तो यस ले लेगा। एंटर। अभी क्या पूछ रहा है क्या कि आपका इंटरफेस क्या होगा? बिकॉज यहाँ पे दो IP एड्रेस है, जैसे एक पब्लिक IP एड्रेस है, प्राइवेट IP एड्रेस है। तो आपका डिफॉल्ट इंटरफेस कौन सा होगा? जो वेब बाहर से एक्सेस होगा, पब्लिक वाला जो 000 जो लिखा है उसी को रखना है। तो यहाँ पे देखो 1 सिलेक्टेड है बाय डिफॉल्ट, तो आपको क्या करना है? एंटर मारना है। यहाँ पे पूछ रहा है क्या सिक्योरिटी किस लेवल का होगा? तो मैं मिड लेवल का सिक्योरिटी बाय डिफॉल्ट लेके रखा है। आपको सिर्फ कुछ करना नहीं है, एंटर मार देना। जो डिफॉल्ट बोल रहा है उसी को आपको रखना है, ठीक है? डिफॉल्ट जो बोल रहा है ना आपको उसी को रखना है। अभी क्या बोल रहा है? क्या पोर्ट नंबर क्या होगा एडमिन वेब UI के लिए? तो एडमिन UI के लिए 943 होगा बोल रहा है। देखो 943 उस टाइम पोर्ट अलाउ किया गया था। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? एंटर मार देना है, बिकॉज डिफॉल्ट पोर्ट यही रखना है मुझे। अभी पूछ रहा है TCP पोर्ट कौन सा होगा जिससे एक्सेस होगा? तो HTTPS से एक्सेस करेंगे हम लोग, तो 443 एंटर। राउट थ्रू द VPN, क्लाइंट ट्रैफिक बी राउटेड बाय डिफॉल्ट थ्रू द VPN। तो यहाँ पे नो करना है। देखो नो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, आपको क्या करना है? एंटर मार देना है। अच्छा DNS ट्रैफिक का कुछ झमेला नहीं है, आपको नो कर देना है, यहाँ पे एंटर मार देना है। अच्छा सबनेट्स बी एक्सेसिबल टू क्लाइंट्स बाय डिफॉल्ट। EC2 का जितना सारा इंस्टेंस होगा सब एक्सेसिबल होगा। यस यस एंटर। अच्छा अब पूछ रहा है कि एडमिन URL का लॉगिन ID क्या होगा? ओपन VPN होगा, यूजर नेम। यहाँ पे देखो ओपन VPN लिखा है, तो यस के लिए आपको एंटर मारना है। सो पासवर्ड क्या देना है? टाइप द पासवर्ड फॉर ओपन VPN। अगर आप ब्लैंक डालोगे पासवर्ड तो ये पासवर्ड जनरेट करेगा ऑटोमेटिक। तो मैं पासवर्ड सेट कर देता हूँ। सर वो अगर पासवर्ड खुद से जनरेट करता है तो लंबा सा पासवर्ड जनरेट करेगा, वो दिख पाए, हम देख पाएंगे? हाँ एक ही बार दिखेगा, लेकिन लिखना ही अच्छा है भाई, अपने याद रहेगा। मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। भाई पासवर्ड की देवो सायन, पासवर्ड की देवो कॉम्प्लेक्स पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर with alpha numeric specific characters. I will say WB 20BV 4250. तो मेरी गाड़ी नंबर बोल आते हो बना एक कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर दाओ नहीं। ओ @WB 20BV 4250 আমার মনে থাকবে? তুমি তো আজকে সেই লেট করে पासवर्ड सर, पासवर्ड दिला হবে सर s@b। तो मैं पासवर्ड डालता हूँ, पासवर्ड @123 ले रहा है। कंफर्म द पासवर्ड, पासवर्ड @123 ये डाला मैंने। एक्टिवेशन कोड मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पे ब्लैंक ही छोड़ देता हूँ। अभी मेरा सेटअप क्रिएट हो गया, मेरा VPN सर्वर क्रिएट हो गया। अभी जो मैं किया वो VPN सर्वर ही बनाया, ठीक है?
ये फर्स्ट टाइम जब आप मशीन को ऑन करोगे तो आपका सेटअप का ये सेटअप का पूरा सिंटेक्स आपसे पूछा जाएगा। आप स्किप मत करना, आपको कंप्लीट करना है, नहीं तो VPN सर्वर आपका क्रिएट नहीं होगा, आपको पूरा कंप्लीट करना है। नाउ इट्स लाइक मशीन इज क्रिएटेड, मशीन इज रेडी फॉर यूज। अभी आपको यहाँ पे देखो एडमिन का URL दिखा रहा है मुझे कि आपको अगर VPN में कोई चेंजेस करना है तो ग्राफिकली चेंज कर सकते हैं यूजिंग दिस URL। ठीक है, का भी नीचे और क्लाइंट के लिए नीचे का URL है। फिर उसमें क्या कर सकते हैं क्लाइंट URL? तो मैं पहले दिखाता हूँ आपको एडमिन URL। सो दैट इज माय एडमिन URL, जिससे आपको लगता है कि चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लाइक मैं अगर मैं बोलूँ कि मुझे एक्सेस करना है VPN सर्वर को, तो मैं अपना सिस्टम से एक्सेस कर सकता हूँ किसी भी ब्राउजर के थ्रू से। ये आपका VPN सर्वर एक्सेस हो रहा है, एडमिन का पेज। ठीक है, एग्जाम में प्रैक्टिकल आने वाला है। ये देखो मैं एक्सेस किया, इट इज माय VPN सर्वर। ये सिर्फ मैं यहाँ से एक्सेस कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है आप अपने मशीन से भी करना चाहो तो कर सकते हो, बिकॉज ये पब्लिक IP के थ्रू से एक्सेस नहीं सकते, यहीं से एक्सेस कर सकते हैं। बट एक्सेस करने के लिए आपके पास पासवर्ड होना चाहिए। पासवर्ड पता है क्या? यूजर नेम क्या है? ओपन VPN और पासवर्ड है password@123। ये हमारा मेन पोर्टल है एडमिन का। मतलब आपको अगर VPN के अंदर कोई भी चेंजेस करना है आप कर सकते हो। ये सारा सेटिंग्स आपका VPN का यहाँ पे आ गया। अभी तक हम लोग सारा कुछ काम कर रहे थे कमांड से, अभी ग्राफिकली करने का ऑप्शन दे दिया। जैसे राउटर कॉन्फ़िगर करते हैं ना, वायरलेस राउटर, उस तरह से ही सारा यहाँ पे ऑप्शन है। एक्टिवेशन कोड मेरे पास नहीं, इसलिए मेरे को क्या बोल रहा है कि यू हैव 2 VPN कनेक्शन अलाउड। एक साथ तुम 2 ही VPN को अलाउड कर सकते हो, 2 क्लाइंट कनेक्ट हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। फ्री में मुझे इतना ही मिलेगा। बाकी सेटिंग्स है, आप सेटिंग्स में अगर चेंज करना चाहते हो सेटिंग्स में चेंज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। जो भी सेटिंग्स आप चेंज करना चाहते हो, टूल्स है यहाँ पे। तो ये एडमिन का पेज है, CID and netmask beats सारा कुछ यहाँ पे है। ठीक है, ये स्टेटस का है कि आपका VPN सर्वर कैसे चल रहा है, क्या स्टेटस है उसका। आप यहाँ से बंद कर दोगे तो बंद हो जाएगा VPN सर्वर। क्लियर? यस सर, क्लियर। ओके, नाउ सर अगर हम नेम चेंज करना चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर, सब करने का ऑप्शन यहाँ पे है। पूरा तो सेटिंग्स ही आपके पास आ गया ना। यस सर। अच्छा, नाउ नेक्स्ट वन इज सर यहाँ से अगर यूजर क्रिएट कर देते हैं सर, तब वही यूजर लॉगिन कर पाएगा ना सर, VPN को एक्सेस कर पाएगा। हाँ, यहाँ से यूजर मैनेजमेंट है ना, यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो यूजर को अगर आप करना चाहो तो जो यूजर आप क्रिएट करोगे वो यूजर यहाँ पे दिखेगा, वही यूजर लॉगिन करके एक्सेस कर पाएगा। ओके, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं। ये तो मेरा एडमिन का पेज हो गया। अभी मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि एज ए क्लाइंट मैं यहाँ पे क्लाइंट हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक्सेस करना, तो क्लाइंट तो मैं कैसे एक्सेस करूँगा? किसको एक्सेस करना चाहता हूँ? ये प्राइवेट ये सर्वर को। मकसद तो मेरे को एक्सेस करने का इसका है ना, ऐसे थ्रू VPN। तो क्या करना पड़ेगा? तो एज ए क्लाइंट, मैं अगर क्लाइंट हूँ तो मैं अपना ब्राउजर में जाऊँगा और एडमिन का पेज ओपन नहीं करूँगा, और मैं नॉर्मल पेज ओपन करूँगा, क्लाइंट वाला पेज। क्या ओपन करेंगे? क्लाइंट वाला पेज। ये क्लाइंट का पेज ओपन। बट क्लाइंट का पेज के लिए भी आपको पासवर्ड देना पड़ेगा, है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? ओपन VPN। क्लाइंट मेरा हो गया, क्लाइंट के लिए भी सेम पासवर्ड है। ओके, नाउ VPN एक्सेस, ये रिमोट एक्सेस VPN है, तो देन दैट मींस इट रिक्वायर्ड ऐप। इसको क्या चाहिए? एप्लीकेशन। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। ओपन VPN का ये बोल सकते हैं कि दैट्स द ब्यूटी ऑफ ओपन VPN, इट सपोर्ट्स ऑल प्लेटफॉर्म्स, वो iOS हो, वो एंड्रॉयड हो, विंडोज हो, सभी तरह का प्लेटफॉर्म वो सपोर्ट करता है। तो आपका प्लेटफॉर्म कौन सा मतलब प्लेटफॉर्म बोलने से मैं बोलना चाहता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम। आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको एप्लीकेशन क्या करना है? डाउनलोड करना है। तो मैं विंडोज यूज कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा? विंडोज में क्लिक करूँगा।
यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो। हाँ, तो क्लिक कर दिए। अब ये क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो मेरे केस में मैं डाउनलोड पहले से कर चुका हूँ, दिखाता हूँ मैं तुमको। ये देखो डाउनलोड है ओपन VPN। ये डाउनलोड होने के बाद आपको क्या करना है, इसको डबल क्लिक करके रन करना है। ठीक है, मैं इंस्टॉल भी कर चुका हूँ, इसलिए मेरे को रिपेयर और रिमूव का ऑप्शन दे रहा है। तो मैं कुछ नहीं करता हूँ फिलहाल, आपको नेक्स्ट करके क्या करना है, इंस्टॉल कर देना। जैसे कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं उस तरह से इंस्टॉल कर देना है। करने के बाद फिर क्या करना है, करने के बाद आपका VPN यहाँ पे इधर में दिखेगा। आपको दिख रहा है क्या कहीं पे? नहीं दिख रहा है, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, है ना। मैं इसको यहाँ से हटा दिया इसलिए नहीं दिख रहा है, लेकिन ये शॉर्टकट मेरे यहाँ पे है। तो इसको आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है, डेस्कटॉप में ऐसा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, कनेक्ट करना है, इस तरह से कनेक्ट करना है। क्लियर? तो मैं फिलहाल फ्रेश से ही ना डाउनलोड करके दिखा ही देता हूँ, बिकॉज मुझे ना ये वाला काम मेरे केस में नहीं करेगा। पुराना वाला VPN ये है, मुझे फ्रेश से ही डाउनलोड करना पड़ेगा, बिकॉज इट जनरेट्स अ डिफरेंट IP एड्रेस। पुराना वाला पब्लिक IP डिफरेंट था, अभी का पब्लिक IP डिफरेंट है। सो मैं फ्रेश से ही दिखाता हूँ आपको। प्रैक्टिकल सर एग्जाम में आने वाली है। हाँ, BPC से तो प्रैक्टिकल देगा करने के लिए। ओके सर। APC तो मेन टॉपिक है AWS का। नेक्स्ट क्लास से हम लोग चले जाएंगे स्टोरेज में। स्टोरेज में हमारा क्या क्या है, जैसे S3 है, S3 बकेट है, ELB है ना। वो सारी चीज सीखें, किस तरह से उसको यूज करते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, इसको रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, क्या क्या परमिशन से सेट कर सकते हैं, सारा कुछ। ये देखो डाउनलोड हो गया ना, मैं इसको रन करता हूँ। ये ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पे रन एनी में करना है। सेम प्रोसेस आ रहा है यहाँ पे नेक्स्ट। अभी यहाँ पे मैं रिपेयर में ही जाऊँगा, बिकॉज मेरा पुराना वाला मैं नहीं चाहता, मैं चाहता नया वाला। अभी देखते हैं होता है या नहीं होता है, नहीं तो फिर वापस अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो फिर से तो करना पड़ जाएगा। देखो ये आ गया ना, ऑटोमेटिकली फिनिश कर दिया। अभी मेरा जो IP है वो दिखा नहीं रहा है, पुराना वाला IP दिख रहा है मुझे, पता नहीं क्या होगा। फिलहाल मैं एक बार ना नए से करता हूँ। यूजर नेम क्या था? आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, जब फर्स्ट टाइम करोगे ना ओपन VPN, आपको उसी टाइम वहीं पे सब कुछ आ जाएगा। मेरे केस में मैं नहीं आ रहा है, बिकॉज मैं पहले कर चुका हूँ, और पहले करने की वजह से क्या हुआ, मुझे अलग IP मिला, पब्लिक IP, और अभी का IP क्या है, अलग है। इसलिए मुझे नए से करना पड़ रहा है। देखो नया वाला ये वाला है, पुराना वाला ये था। मैं अभी इससे क्या करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट कैसे करोगे, इसमें क्लिक करोगे, ये पासवर्ड पूछेगा ओपन VPN का। आपको पासवर्ड वही डालना है, पासवर्ड @1 2 3 जो हम लोग सेट किए थे। अभी क्या दिखा रहा है, कनेक्टेड दिख रहा है, VPN इज कनेक्टेड नाउ। इंटरनेट स्पीड है, ये मेरा कनेक्टेड दिखा रहा है, और कौन सा प्राइवेट IP मिला है ये भी दिखा रहा है नाउ। और ये मेरा 8 DB है जिसको मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ। नाउ इट इज वर्किंग। मैं प्राइवेट वाला मशीन को एक्सेस कर पा रहा हूँ, कैसे, थ्रू VPN।
अभी मुझे सिर्फ करना क्या है, मुझे पासवर्ड डालना है। पासवर्ड उसका क्या है एक बार देख लेते हैं। तो ये सर्वर है, सर्वर का पासवर्ड मुझे देखना है। तो गेट पासवर्ड किया और सर्वर की ओपन और गेट पासवर्ड कर दिया। ये पासवर्ड है। अभी मैं अगर कनेक्ट करता हूँ तो कनेक्ट हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना? क्या नहीं होना चाहिए? ओके, अभी चेक करते हैं क्या सही में आया कनेक्टिविटी मुझे। कैसे हो रहा है? VPN कनेक्शन बंद कर देंगे, कनेक्शन भी चला जाएगा। वो भी चेक कर लेंगे। चलो, जो 750 आवर बिलिंग मतलब कितना आवर तब भी सर? 750 तक फ्री है। 750 तब भी सर 1 या 2 आवर कुछ तो ऐसा होगा। 750 आवर्स के लिए आपको फ्री अकाउंट दिया गया ना? यस सर। 750 आवर्स का कोई बिलिंग नहीं होगा। बिलिंग होगा भी तो आपका पैसा नहीं कटेगा, मतलब कोई बिल जनरेट नहीं होगा, समझे? 750 आवर्स से ज्यादा यूज कर लोगे यस सर, तभी बिलिंग होगा। यस सर। 750 आवर्स बहुत होता है। हाँ, आपको सिस्टम को टर्मिनेट करना है। नहीं करोगे तो 750 आवर्स कुछ भी नहीं है। सर ये 750 आवर्स क्या है? 1 मंथ के लिए यूज करेंगे? नहीं, जब तक तुम्हारा अकाउंट है तब तक। दिख रहा है मेरा ये EC2 इंस्टेंस सर्वर का एक्सेस हो गया। कैसे हुआ? डायरेक्ट एक्सेस हुआ। मुझे कुछ करना पड़ा क्या? हाँ, मुझे करना पड़ा। नो सर क्यों बोले? करना पड़ा। क्या करना पड़ा? हम लोगों को VPN सर्वर बनाना पड़ा। VPN सर्वर हम लोगों को क्रिएट करना पड़ा। VPN सर्वर बहुत बड़ा है। और ये IP देखो, यहाँ पे प्राइवेट IP है, इसको कोई पब्लिक IP नहीं मिला। देयर इज नो पब्लिक IP एड्रेस, लेकिन एक्सेस हो रहा है। कैसे हो रहा है? थ्रू दिस VPN। ये जो VPN सर्वर मेरा चल रहा है ना, ये देख रहे हो इधर, ये VPN सर्वर चल रहा है, इसी से मिला। VPN सर्वर को बंद कर देंगे, मेरा कनेक्शन भी चला जाएगा। डिस्कनेक्ट करते तो ये चला जाएगा ना? देख लेते हैं करके, डिस्कनेक्ट कर दिया, कंफर्म। अभी देखो कनेक्शन चला गया। VPN के थ्रू से आ रहा था कनेक्टिविटी। तुम्हारे सामने बोल दो 1 2 3 4 नेक्स्ट 4 तो नहीं। अभी VPN सर्वर को फिर से कनेक्ट करो। तो आपका कनेक्शन भी मेरे ख्याल से कनेक्टिविटी अभी हो जाना चाहिए। एक बार चेक कर लो। अटेम्प्ट कर रहा है, सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट में हो जाना चाहिए। हो गया? क्लियर? कैसे हो रहा है ये? VPN के थ्रू से हो रहा है। सो प्रैक्टिकल इज क्लियर फॉर एवरीवन? यस सर। अब इसका मायने पर आना है। यस सर। VPN सर्वर का। हाँ, VPN सर्वर का नहीं, VPC का ही क्रिएट करना है। VPC का पूरा माइंड में उस टॉपिक का नेक्स्ट डे चेक करेंगे हम लोग प्रैक्टिकल क्लास में। VPN बना के लेके आना है VPC का। बिकॉज ये चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके हैं, सिर्फ एंड पॉइंट बाकी है जिसको हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट डे में। छोटा सा टॉपिक है, तो एंड पॉइंट का एक छोटा सा ब्रांच ऐड कर देना, एंड पॉइंट लिख देना। बाकी जो हम लोग सीखे हैं VPC में, रिकॉल में बात किए थे, वो सारा कुछ वो आपका माइंड मैप में ऐड होना चाहिए। असाइनमेंट नेक्स्ट डे चेक करने का है, तो उसी दिन हम लोग वो भी देख लेंगे, माइंड मैप भी देख लेंगे। सैटरडे को असाइनमेंट। ओके सर। असाइनमेंट सैटरडे से। ठीक है, आप आते हैं डिलीट कैसे करेंगे? हेलो, मेन वाला पार्ट में आते हैं, मेन पार्ट में, नहीं तो बिलिंग आएगा। डिलीट कैसे करेंगे? टाइम हो गया काफी, मैं इसको बंद कर देता हूँ। मेरा VPN भी बंद हो गया, ये भी बंद हो गया। सर तो बेनिफिट क्या है सर दोनों का? हम उसको रिमोटली एक्सेस करते थे, ठीक है, इसको भी तो हम डायरेक्ट VPN से एक्सेस कर रहे हैं, और ये तो मोर सिक्योर भी। तो फिर क्या बेनिफिट है कि हम उसको यूज करें, इसको ना करें?
उसको मतलब किसको? वो नेट को यूज कर रहे थे, जो रिमोटली उसको एक्सेस कर रहे थे पहले पब्लिक को, फिर वो प्राइवेट में हमको शिफ्ट कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट VPC से कनेक्ट कर ले रहे हैं और ये सिक्योर भी है, तो फिर हम उसको क्यों यूज करें? नेट से हम लोग रिमोट एक्सेस नहीं कर रहे हैं। मैं बार बार, नेट इज ओनली द गेटवे विच प्रोवाइड द इंटरनेट टू द प्राइवेट नेटवर्क। इट इज नॉट प्रोवाइडिंग द कनेक्टिविटी। नेट तो रोकता है। प्राइवेट जो डेटाबेस था उसको इंटरनेट मिल रहा था। मैं चाह रहा था कि मेरा प्राइवेट सबनेट में जो मशीन्स था उसको इंटरनेट मिले। जैसे ही ये मशीन अभी मैं एक्सेस किया, उसको इंटरनेट था क्या उसके पास? नहीं था। मैं नेट लगा दूंगा, उसको इंटरनेट मिल जाएगा। समझ में आया क्या? ये जो मशीन में एक्सेस किया था, अभी उसको इंटरनेट नहीं था। वापस देखना है, दिखा देता हूँ। चलो, ये वाला आइकॉन देख रहे हो? तुम लोग ध्यान नहीं दिए शायद। उसका इंटरनेट नहीं था मशीन का, बिकॉज मैं नेट गेटवे लगाया ही नहीं। तो ये सिस्टम जो मैं एक्सेस किया हूँ अभी, वापस मैं कर रहा हूँ ये वाला मशीन का। अगर आप ध्यान दोगे कि ये मशीन प्राइवेट आईपी लेके सिर्फ बैठा हुआ है और इसमें कोई इंटरनेट नहीं है। यहाँ पे दिखा रहा है बट सर वो तो फिजिकल वाला नहीं, वर्चुअल का ही मशीन है। ये फिजिकल का ही दिख रहा है ना। वो तो रिकॉर्ड वापस करते हैं। अरे हाँ ठीक है, एक बार हम लोग इसको चेक कर लेते हैं आईपी कॉन्फ़िग करके। आईपी कितना दिख रहा है? 10.0.100.48 है ना। अभी हम लोग एक बार इसको पिंग करते हैं 8.8.8.8 जो मेरा गूगल का आईपी है। नहीं हो रहा है बिकॉज इंटरनेट है ही नहीं। बट इंटरनेट देना अगर है तो मुझे नेट गेटवे लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इलास्टिक आईपी का फिर वहाँ पर जरूरत पड़ेगा। पिंग करो किसी को भी, गूगल को ही पिंग करो, नहीं होगा अपनी। नेटवर्क है ही तो नेटवर्क है, इंटरनेट नहीं। इंटरनेट नहीं, नेटवर्क तो ऑब्वियसली है, तभी मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। क्लियर एवरीवन? यहाँ से जाइए, देखिए आप दिख रहे हैं। ठीक है ना। मैं इसको क्लोज करता हूँ और मेरा VPN को भी बंद करता हूँ और मैं डिलीट करता हूँ। कैसे डिलीट करते हैं देखते हैं। कैसे डिलीट करना है? ये आपका इंस्टेंस नहीं, आपको पहले VPC में जाना है। ठीक है, नहीं सबसे पहले इंस्टेंस ही डिलीट कर दो। सबसे पहले क्या करना है? इंस्टेंस को हटा दो। इंस्टेंस का तो ये इंस्टेंस में जाना है और यहाँ पे आपको इंस्टेंस को हटा देना है। তোমার এখানে কোথায় ক্লাস? ক্লাস আছে স্যার। হ্যাঁ, শুধু শুধু প্রতিদিন চলে আসো। কোথায় ক্লাস এখানে তোমার? তোমার ব্যাচ শিডিউলে তোমার কোনো ক্লাসেই লেখা নেই। আপনি স্যার দিচ্ছেন না, আমি কি করব বলুন? उसके बाद क्या करना है? VPC में चल जाएंगे। उसके बाद रूट टेबल में जाना है। ठीक है, रूट टेबल में जाने के बाद रूट टेबल अटैच करके, रूट टेबल में जाने के बाद आपका इंटरनेट गेटवे जो आपका अटैच किया हुआ है उसको क्या करना है? रिमूव कर देना है। ठीक है, क्लियर? उसके बाद आपके इंटरनेट गेटवे में जाना है और इंटरनेट गेटवे को जो बनाए हम लोग उसको क्या करना है? डिलीट कर देना है। डिटैच करने के बाद हो गया। यस। इसके बाद रूट टेबल्स
को हटाना है, डिलीट करने नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है बोलो तो? ये जो सबनेट्स है ना उसमें ऐड किया हुआ है। रूट टेबल में चलेंगे वापस, डिलीट करेंगे, रिफ्रेश करते हैं। अभी आ गया, डिलीट करना है इस तरह से, सबने डिलीट करने के बाद रूट टेबल डिलीट करना है। ठीक है, हो गया। लास्ट में आके VPC को यहाँ से डिलीट कर देंगे। हो गया VPC डिलीट। अब चलना है हमारा यहाँ पे EC2 में। देखो EC2 में की पेयर हम लोग बनाए थे, दो की पेयर, दोनों को क्या करना है, डिलीट कर देना है। जितने कुछ बनाए हो ना खुद से सबको डिलीट कर दो, अदरवाइज आपका हो सकता है कि बिलिंग हो। और वापस इंस्टेंस, इलास्टिक IP, सिक्योरिटी ग्रुप, मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक ठाक ही लग रहा है मुझे, है कि नहीं? ओके, क्लियर एवरीवन? सर इंस्टेंस जो दिखा रहा है अभी वो मतलब 1 है, इंस्टेंस तो दिखेगा यहाँ पे, रनिंग इंस्टेंस में कुछ नहीं दिख रहा है ना। इंस्टेंस दिख रहा है लेकिन वो यहाँ पे टर्मिनेटेड दिख रहा है, वो कुछ देर बाद नहीं दिखेगा। ठीक है, लॉग आउट करके लॉग इन करोगे देखोगे नहीं दिख रहा है। उसके बाद आपका साइन आउट कर देना है। आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया और लैब भी कंप्लीट हो गया। क्लियर फॉर एवरीवन? समझ में आ गया सबको?